in our last session, I had taken the chapter classification of manufacturing industries, right? And to begin with, I told you कि manufacturing sector यानी कि हमारा secondary sector, the sector which converts raw materials into finished goods. Then हम लोगों ने पढ़ा कि what is the importance of manufacturing sector. That's a very important question according to both. That is the one because it is the complement to agriculture. It generates revenue, it generates foreign exchange, and it also creates employment. And the manufacturing sector is also said to be one of the measurement of economic development of a country. Then हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था that classifications of the manufacturing industries on the basis of the raw materials, on the basis of the capital investment, on the basis of ownership. और पेपर के अंदर आपका जो है ओनरशिप वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार आया हुआ है, एंड दैट क्वेश्चन कैन बी नॉट डायरेक्टली एज एन एमसीक्यू, दैट कैन बी लाइक आपके जो है फिल इन द सीरीज करके भी आ जाता है. सेल, पब्लिक सेक्टर, रिलायंस, प्राइवेट सेक्टर, ऐसे करके. देन वी क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज. ईदर ये जो इंडस्ट्रीज हैं या तो ये लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के आउटपुट्स, एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एग्रो, एंड दूसरा होता है विच वी ऑब्टेन यूजिंग द मिनरल्स. तो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, वी हैड लर्न व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, and under the agro based industries I had taught you the textile industry which is based on cotton, secondly the jute industry which is basically the industry which is concentrated near West Bengal, and third one was the sugar industry. ये तीनों जो है हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, that these are the industries which हमारे चैप्टर, हमारा जो अभी सिलेबस है, आपका जो 10th का सिलेबस है उसमें है. देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बट दीज आर द मेन. एंड also I told you कि if you have the chance, if you are going, I know some of you will be definitely going to see the trade fair. तो अगर आपको चांस मिलता है तो आप वेस्ट बंगाल का, जूट इंडस्ट्री का, इन सबको आप जरूर देख सकते हो. दैट वुड हेल्प यू आउट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस. Now we are proceeding towards the mineral based industries. सर में दर्द हो गया, मेरे पास मत आइयो. मैंने बोल दिया. While we talk about the mineral based industry means जो raw materials के अंदर minerals को use करते हैं, and all the major industries are based on minerals. In fact, you know, agro based industry हमारे maximum है. Cotton textiles आपका हो गया, या फिर कोई और इंडस्ट्री हो गए, they are also very important. But when we say minerals, तो इनसे जो हमें रेवेन्यू मिलती है या फिर दे आर मोर ऑन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट अस कम टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मिनरल्स में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, दैट इज इन द लास्ट चैप्टर मिनरल्स वाले में. आयरन है आपका, मैग्नीज है आपका, कॉपर है, मतलब हमने ये सब कुछ पढ़ा था. तो जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है, बेसिकली आयरन आपका फेरस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टील,
यूजिंग निकल, कोबाल्ट, आपका मैंगनीज, इन सबको यूज करके आपका स्टील बनता है. And ये जो स्टील होता है, these are two kinds of steel. One which the steel which we are using for the making of machineries. क्योंकि आयरन आपका जो है वो corrode हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा. So हम उसको जो है we turn it into steel to use it. And दूसरा होता है जो हमारे घरों के अंदर होता है, the stainless steel. The word says stainless steel. तो दोनों में, whether it is for the domestic consumption, domestic purposes or for the industrial purposes, हमारे लिए iron and steel जो है, it is one of the basic industry. And that is why the production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. क्योंकि अगर आप स्टील को यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है. जितनी मशीनें आपकी होती हैं, छोटी मशीन होगी या बड़ी मशीन होगी, everyone is using the iron and steel. And as per what we call is कि इंडिया जो है, it is 9th among the crude. Crude का मतलब होता है in the raw form. In the raw form, because मैंने आपको बताया स्टील को हम लोग later on हम उसको stainless steel बोलते हैं, which doesn't corrode. Then हमारे यहाँ दो kind of iron होता है, sponge iron and pig iron. Sponge iron and pig iron. Pig आप देख सकते हो, pig जैसा मतलब उसका जो छोटे फॉर्म में होता है. And sponge iron आपका होता है in the larger form. So we are the largest producer also, but अभी हम लोगों का इतना industrial setup नहीं है. That is why we are not consuming steel in that way. But steel को हम दो तरीके से यूज करते हैं. One is integrated steel plant and the second one is mini steel plants. आपके पेपर का ये क्वेश्चन आता है, what is the difference between integrated and mini? तो integrated का मतलब है which is जब आपका स्टील बन रहा है तो there are number of processes. स्टील को आयरन से स्टील में कन्वर्ट करने के लिए there are number of processes. And one process होता है, अगर आप लोगों ने जो आपके जो पटरी होती है रेल की, तो on both the sides you have the ingots, 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 यानी कि बार लंबे लंबे, तो वो भी होता है और आपका जो है छोटे फॉर्म में भी होता है. इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग इट इनटू स्टील से लेकर उसको लार्जेस्ट जितने उसके अंदर प्रोड्यूस सब कुछ उसके अंदर किया जाता है. whereas in the mini steel we have only 2 or 3 process. आपके पेपर के अंदर डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील प्लांट्स के आने के चांसेस है. इट्स नॉट लाइक इट विल कंपल्सरीली कम, बट देयर इज अ चांस. सो दिस मीन्स, आई एम सो सॉरी, दिस मीन्स steel, it is used in the smaller form and it is also used in the larger form. Integrated steel plants का मतलब है वो बड़ी बड़े इंडस्ट्री, वो बड़े बड़े प्लांट्स जहां पर स्टील का आयरन से स्टील को कन्वर्ट करने के जितने प्रोसेस हैं वो, और उनको लार्ज क्वांटिटीज में हम प्रोड्यूस करते हैं. whereas in the mini we are having only 2 or 3 process. We have the sponge iron, we have the pig iron. हमारे पास हर तरीके के जो आयरन होते हैं उसको हम यूज करते हैं. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, which is the public sector company, यानी कि it is owned by government of India. Whereas आपका जो टिस्को है, मतलब it's not only टिस्को, टिस्को is one of the oldest one, which is and that is the private sector. We are also having many other steel plants in our country, but these two are the one which have been working since our independence. अगर आपने याद किया हो, if you remember, तो हमारा जो
आयरन एंड स्टील के हम लोगों ने जो आयरन के लगाए थे, आयरन फील्ड वी हैड मार्क समवेयर नियर द छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि आपका झारखंड के नीचे वाला जो एरिया आता है, द वन विच इज छत्तीसगढ़, ये वाला। तो क्यों वहां पर है? बिकॉज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद हो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वी हैड मार्क द रेड एंड येलो सॉइल हियर। एंड हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता तो ये कलर चेंज करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरस। यहाँ पर आपके जो है, एक तो सबसे ज्यादा फेरस आपके पाए जाते हैं, मतलब दिस रीजन इज हैविंग लो आयरन ओर। then labor from the nearby areas. This area is connected with all the major cities of our country through railways as well as roadways. आपका जमशेदपुर, which was started by Jamshedji Tata, this is one of the main industry, और उन्हीं के नाम से वहां पर जमशेदपुर है। If you have gone there or you belong to there, you might be knowing वहां पर कितने इंडस्ट्रीज हैं, बड़े भी और छोटे भी। Yet अभी अगर हम इंडस्ट्रियल, if we say output at the global level, अगर हम कंपटीशन को देखते हैं, तो अभी हमारे पास कोकिंग कोल, अब ये कोक वो नहीं है जो हम पीते हैं, कोकिंग कोल का मतलब होता है which is used for, जो कि हम यूज करते हैं in the thermal electricity, जिसको बर्न करने के लिए यूज करते हैं। लेबर in India, labor is not that much productive. This is because we lack in skills, erratic energy supply, and poor infrastructure. This is what I said, difference between mini and integrated steel. ये 3 मार्क्स में आपके पेपर में आ सकता है। Mini steel plants are small electric furnaces. Furnaces मतलब आपकी भट्टियां होती हैं, उनके जो चिमनियां होती हैं वो। यूज स्टील स्क्रैप मतलब जो घिसा हुआ, एंड स्पंज आयरन। दे हैव री रोलर्स टू यूज स्टील इनगॉट्स। इनगॉट्स आपके होते हैं बार। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील। इंटीग्रेटेड, जिसमें पिग आयरन होते हैं, इट हैंडल्स एवरीथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग, सब कुछ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड हमारा जो फर्स्ट हमारा था आयरन एंड स्टील। इफ यू रिमेंबर मिनरल्स में हमने पहला स्टील पढ़ा, आयरन पढ़ा था। आयरन को ही हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। सेकेंड इज अल्मुनियम। अल्मुनियम क्या यूज करता है अपना? द रॉ मटेरियल यूज्ड इन अल्मुनियम इज बॉक्साइट। आपके बुक के अंदर ना एक मतलब एक बार आया था, किसी स्कूल के अंदर आया था, जो स्कूल उसमें देयर इज वन डायग्राम मेड, उसके अंदर दिखाया हुआ है ये वाला जो मैं पढ़ रही हूँ, कि सबसे पहले अल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज मैलिएबल एज वेल एज डक्टाइल। आप उसको वायर्स एज वेल एज आप उसको शीट में कर सकते हो। इट इज वेरी चीप ऑल्सो, एंड दैट इज वाई हम लोग जो है एल्युमिनियम को यूज करते हैं। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, हम बॉक्साइट को लेते हैं, अलुमिना बनता है, बॉक्साइट से आपका अलुमिना बनता है, एंड देन उसको जो है फर्नेस में लेकर हम एल्युमिनियम का रूप मतलब की फॉर्म देते हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, all the areas on the eastern coast and Maharashtra on west is very they are all very rich in aluminium one, but Odisha एक टाइम पर सबसे ज्यादा रहा है। बॉक्साइट आपके जो आपके ओपन पिट माइंस हैं वो आपके ओडिशा में बहुत रहे। तो दिस इज aluminium. Aluminium is used in many industries. It is also used for the household purposes. It is also used as utensils, and it is also used for other basic industries. Next, ये तो हमारे थे मिनरल से हमने जो बनाया, मेटल से। नेक्स्ट इज केमिकल्स। एवरीवेयर आप अपने घर में पेंट यूज करते हैं, उसमें भी आपके केमिकल्स होते हैं।
आप डाई यूज करते हैं, दैट इज कपड़ों को डाई करना होता, हम लोगों ने याद किया टेक्सटाइल्स में पढ़ा था, तो डाई के लिए भी आपके केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन में भी आपके केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग इज मेड, मतलब ये सब चीजें आपकी जो है केमिकल्स में होती है। नाउ वी हैव केमिकल्स विच आर ऑर्गेनिक, वी हैव इनऑर्गेनिक, दोनों तरीके के हैं. There are chemical industries which cause pollution and there are chemicals which are मतलब कि जिसको यूज किया जाता for special purposes. Heavy inorganic chemicals, sulfuric acid, nitric acid, caustic soda, जो आपके साबुन बनाने में, then नमक के लिए alkali, soda ash, ये हम है हमारे. Then sulfuric acid, which is the main one for fertilizers, जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है. नेचुरल में तो वी आर यूजिंग काउ डंग. देन सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उनमें यूज होता है, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड डाइज. दैट इज व्हाई certain times if you are using them you may be having the sneezing one. आजकल तो पेंट के अंदर they are taking such chemicals जिससे कि आपको sneezing या मतलब respiratory problems कम. सोडा ऐश, ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर, सोप इंडस्ट्री, डिटर्जेंट्स, इनमें यूज होता है. हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स which is used for synthetic fibers, rubber, plastic, dye stuff, drugs, medicine आपको जो मैंने बताया, pharmaceuticals, आपके pharmaceuticals is completely based on the chemical industries. आपका that is why when you are even studying if you are मतलब कि intending to study anything related to bio, तो आपका PCB होता है, because फिजिक्स आपका जो है दैट वुड बी यूज्ड इन सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, और केमिकल जो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड फॉर ऑल द मेडिसिन्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, उन सब में यूज होता है. मोर दीज केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है सिंथेटिक फाइबर, रबर, डाई स्टफ, ये इंडस्ट्रीज जो है वो आपके कहीं ना कहीं जो है ऑयल रिफाइनरीज के पास होती है. And they are also a great contributor for entire manufacturing. और आने वाले टाइम में in the coming era with the advent of more diseases, more medicines, definitely chemical industry हमारा और grow होगा. इंडिया के अंदर मैक्सिमम सारे केमिकल्स हैं, लीविंग पोटैश. पोटैश इंडिया के अंदर नहीं है, वी हैव टू इंपोर्ट इट. हमारे पास जो है we don't have potash. all other caustic सोडा हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, मतलब कि ये सब हमारे पास है, but we don't have potash. Potash has to be imported. Next is fertilizers. Fertilizers itself also use chemicals आपका, and the first industry was in Tamil Nadu. फर्टिलाइजर क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है? दिस इज बिकॉज राइट नाउ व्हाइल वी आर यूजिंग द HYV सीड्स, वेयर वी आर यूजिंग द इंडस्ट्रियल आउटपुट्स फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग. आप में से अगर कोई बच्चा कल को जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहता है, जेनेट मतलब कि बायोकेमिकल करना चाहता है, तो जहां पर भी आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया या फिर आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हो, तो यू वुड डेफिनेटली बी स्टडिंग अबाउट द केमिकल्स. एंड वहां पर आपके लिए फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज विच ऑल द एग्रीकल्चरल आउटपुट्स, आजकल क्या है, वी आर ऑल्सो हैविंग द लैब बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो वहां पर हर जगह पर जो है यू विल बी स्टडिंग अबाउट देम, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की वजह से ही, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स प्लस HYV सीड्स जो थे, दे वर द मेन रीजंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब. और इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है वो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ इंडिया का जो मेन है. With the onset of Green Revolution, it was set in Gujarat, Tamil Nadu, UP, Punjab, and Kerala. Then we also have it in the southern belt. We have जिसमें nitrogen use होता है, यूरिया,
then 9 for ammonium sulfate as a byproduct, and 68 other small units producing single superphosphate. So this is how fertilizer industry. 2 years back, I think this question came in the boards. How is fertilizer industry contributing to the development? तो आपको ये सारा कुछ लिखना है. This is because fertilizer after the green revolution, it has become an important component for all the agriculture and agro based industries also. भाई एग्रीकल्चर से आपको प्रोडक्ट चाहिए तो फर्टिलाइजर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए तो फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री चाहिए. नेक्स्ट, वी स्टडी, वी हियर, अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है. द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. बॉम्बे से, दिल्ली से बॉम्बे जो है, वी विल बी रीचिंग इन 12 hours. देयर आर नंबर ऑफ फ्लाईओवर्स इन दिल्ली. Number of buildings are being built, dams. तो इन सब में चाहे आप अपना घर बना रहे हो या फिर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या डैम्स कर रहे हो, एवरीवेयर आपके, अगर आपको हिंदी में आता होगा और आप लोगों ने देखा होगा तो बदरपुर हम कहते हैं, देन रेत, दैट्स आपका रेत, एंड देन सीमेंट. These three are very important for the construction industry. ये जो तीनों हैं, they are very important for the construction industries. And when you are building a home or anything, whatever you are constructing, आपका जो सीमेंट है वो आपके कहीं ना कहीं it will be used in one proportion. वो proportion वैसे तो 4:1 होता है, मतलब 4 सीमेंट और उसके साथ एक, it binds. और सीमेंट आपके दो तरीके के होते हैं. We have two kinds of cement. One is the black cement and another one is the white cement. Black cement आपका यूज होता है for all the construction. आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अंदर ब्लैक सीमेंट यूज होता है. एंड व्हाइट सीमेंट आपके बाइंडिंग में, आपके देन आपका जो है घरों के अंदर, इफ यू आर पुटिंग दी, पहले जमाने में फर्श डलते थे, फ्लोर, तो जो फ्लोर डलता था उनमें मोज़ैक डलते थे, तो उसके साथ व्हाइट सीमेंट यूज किया जाता. तो इट इज यूज्ड इन दैट पर्पस. द फर्स्ट cement industry is in Chennai, which was in 1904. And right now हम लोग जो है, we are also exporting to many countries including the East Asia. अगर आप दुबई गए हो तो दुबई में right now the construction projects are being there. और उसका जो मार्बल एंड जो सीमेंट है ना, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है. दिस पर्सनली आई नो बिकॉज मेरी बुआ मतलब कि शी इज आल्सो देयर, वो दे आर आल्सो देयर इन दिस सेम बिजनेस. द रॉ मटेरियल्स यूज, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी है and it has been as an MCQ question also. What are the raw materials used in making cement? Limestone. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइमस्टोन इज अ सिंगल रॉक मिनरल. सिलिका, जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं उससे, अलुमिना, जिप्सम, कोल, ये यूज होते हैं along with electric power to produce cement. तो दिस इज वेरी अगेन अनइम्पॉर्टेंट, बट अगर आप समझ के लिखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, मतलब यू विल ऑलवेज रिमेंबर. द नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल आपका जो है, फर्स्ट सीमेंट प्लांट आपका जो है, इट कैन बी अ मैप क्वेश्चन, एंड ऑटोमोबाइल आपका मैप का क्वेश्चन ही है. ऑटोमोबाइल आईटी इंडस्ट्री आपके जो है, दे आर मैप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. सीमेंट इंडस्ट्री आपके पेपर के अंदर एज अ मैप क्वेश्चन वंस इट हैज कम. देन आप मतलब फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री करके तमिलनाडु मार्क था, बट आईटी एंड ऑटोमोबाइल आर पार्ट ऑफ अवर मैप क्वेश्चंस which we will be doing in our next class or whenever we are going to have them. Now ऑटोमोबाइल 1970s को उठा लो, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर याद करो, मतलब रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट in 1970s 80s
You did not have the number of vehicles what you are having today. Now I'm not talking about the vehicles which we are using in our own home. हमारे घर के अलावा जो हमारे इंडस्ट्री मतलब कि जो आपके रोड में भी 3 व्हीलर्स यानी कि द वन विच इज कैरिंग, आपने देखा होगा छोटे टेम्पोज होते हैं, देन आपके मेटाडोर्स होते हैं, छोटे वाले लॉरी होते हैं, ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स के अंदर ही आपके देखा होगा 8 व्हीलर 16 व्हीलर करके नंबर ऑफ आपके हैं. तो ये जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं प्लस जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स व्हीकल है, यू मस्ट हैव बॉयज माइट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स वेरी नाइसली, एसयूवी एमयूवी, है ना. तो ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं दे हैव increased after globalization period. It was when Maruti Udyog had entered into the partnership with Maruti Suzuki. उसके बाद हमारे जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा हुए. देन फोर्ड, उन्होंने यहाँ पर जो है दे स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन हियर, देन अदर कंपनी स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन हियर. एंड उस तरीके से क्या हुआ, बिकॉज इंडिया इज मतलब कि गिविंग आपको SEZ देता है, चीप लेबर भी देता है, इन सब की वजह से क्या हुआ, इंडिया बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स. और आज हमारे पास में मारुति है, टाटा है, मतलब वी आर हैविंग सो मेनी कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग कमर्शियल व्हीकल, 2 व्हीलर व्हीकल, 3 व्हीलर व्हीकल, मतलब हमारे पास हर तरीके के व्हीकल्स हैं. वी आर हैविंग कार्स, जीप्स, then we are having 3 wheelers, we are having the trucks, we are having the matadors, we are having the छोटे वाला जो आपके, प्लस अभी तो आजकल तो और भी now to mark in the map, मैप पर मार्क करने के लिए आपका आता है इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. दिल्ली से ज्यादा आपका गुड़गांव है, बिकॉज गुड़गांव इज द मेन मैन्युफैक्चरर फॉर मारुति. देन पुणे, पुणे इज कॉल्ड एज द ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया. पुणे को हम ऑटोमोबाइल हब कहते हैं. आपके जितने बड़े या छोटे इंडस्ट्रीज, जितने भी आप गाड़ी का नाम लोगे ना, all of them are having their main centers in Pune. In fact, आप में से कोई बच्चा अगर कल को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहता है, सो और इफ यू आर, तो पुणे के अंदर आपके जो हैं जितने भी मतलब की गाड़ी वाले हैं, दे ऑल गिव यू द इंटरनल ट्रेनिंग ऑल्सो. उनके अपने कोर्सेज भी हैं, मर्सिडीज, BMW, एंड देन द कमर्शियल, देन चेन्नई, देन कोलकाता, मतलब ये बाकी तो सारे आपके हैं, बट जो आपके पेपर में मेन आते हैं वो है दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, यहाँ पर ज्यादा है. नेक्स्ट आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. दिस इज अगेन अ मैप क्वेश्चन जिसके अंदर आपके जो हैं बेंगलुरु, IT करके आता है, IT इंडस्ट्री. बेंगलुरु इज ऑफन टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बिकॉज जब सिलिकॉन वैली आपका बना था वहां पर US के अंदर, तो आपका जो है इट हैड मोर लिंक्स टुवर्ड्स बेंगलुरु. बेंगलुरु मतलब एक टाइम में, आज से मतलब जब हम छोटे थे तो हम बेंगलुरु जाते थे, तो बेंगलुरु वाज कॉल्ड एज द आउट ऑफ ऑल द साउथ सिटीज, इट वाज कॉल्ड एज द मोस्ट प्लेजेंट सिटी. वहां पर ना ज्यादा बारिश होती थी, ना कम बारिश होती थी, ना ज्यादा गर्मी होती थी. बट टुडे इफ यू गो, इट इज कंप्लीटली, इफ यू लुक इनटू ऑल द 4 मतलब साउथ के सिटीज को देखोगे, सबसे ज्यादा क्राउडेड सिटी है. एंड द रीजन इज IT industries. You are having number of IT parks in Bengaluru, but now of late बेंगलुरु के बाद आपका हैदराबाद जो है, इट हैज आल्सो बिकम द सेकंड लार्जेस्ट IT पार्क. बिकॉज मैं तो, मेरा तो है ना, एक पैर यहाँ पर एक पैर वहां पर रहता है, जो आप लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि आई गो ऑन संडेज और समथिंग लाइक दैट. इवन इफ आई गो इन दैट वे, क्या आप लोगों को नहीं पता होता. एंड
बिकॉज तो मैं प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ वहां पर आईटी इंडस्ट्री इज कंप्लीटली सेटअप इन द आउटस्कर्ट्स. देन गुड़गांव, आपके बहुत सारे बीपीओ कॉल सेंटर्स, जेनपैक हो गया, कन्वर्जीज हो गए. इफ यू हैव गॉन टू गुड़गांव और इफ यू कभी जाना पड़ता आपको तो आप देखना दोनों तरफ कितने सारे आईटी इंडस्ट्रीज और आईटी हब्स हैं आपके. देन ऑफ कोर्स मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं. द रीजन इज आईटी इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट बीपीओ प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज बीपीओ? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आपने जब आपका फोन खराब हो जाता है, फोन में मतलब कि आपको लगता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, तो आप कॉल सेंटर कॉल करते हो, राइट? और आप कहते हो कि आपने कंपनी को कॉल किया. तो जो आप कंपनी को कॉल करते हो ना, 190 198 जो भी नंबर होता है, दैट इज द कॉल सेंटर. यानी कि उस कंपनी का बीपीओ जो आपके कंप्लेंट्स को रिसीव करता है. एंड इंडिया बीइंग हैविंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी, हम लोग इंग्लिश को लर्न करना पसंद करते हैं, इसीलिए जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, दे हैव सेट अप देयर बीपीओज इन इंडिया. That is why, and most, and secondly, it is also provider for women. Women आपकी जो है maximum IT इंडस्ट्री में, plus Indian brain आपका हमेशा है. That is why IT industry has been one of the most increasing important industries of India. ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है. तो दिस इज वाई तो हम लोग जो है चीप लेबर देते हैं. बीपीओ सर्विसेज हमारे मैक्सिमम जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनकी बीपीओ सर्विसेज आर सेट समवेयर इन इंडिया ओनली. वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर देम. नेक्स्ट, इसमें मैप में बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद सारे ही हैं. नेक्स्ट इज आपका दीज वी हैव स्टडीड. ये तो हमने पढ़ा दैट इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास. This is how we have studied what are manufacturing industries, why they are important, then location, then हमने उसको classify किया on different basis. In this chapter we are studying about the agro industries, textiles, cotton का, then jute, sugar और उनके problems. Then in the mineral base हम लोगों ने पढ़ा iron and steel, aluminium, chemical industry, fertilizer industry, cement industry. Then in the electronic area हम लोगों ने जहां पर मतलब कि electrical and electronic में हमने automobile and IT पढ़ा. तो इससे हमें पता लगा कि there are so many industries, there are so many raw materials which are converted into different components. लाइक एक कार बनती है तो कार अकेले नहीं बनती है, कार के साथ शीशा भी बनता है, कार के साथ हैंडल भी बनता है, कार के लिए आपके टायर्स भी बनते हैं, कार के लिए आपका सीट भी बनता है. यानी कि इससे रिलेटेड आपके जितना सामान आता है, चाहे वो प्लास्टिक हो या रबर हो या, तो ये सभी इंडस्ट्रीज काम करती हैं टुगेदर. बट ऑन द अदर हैंड, industries are not only the producers of employment and GDP, they are also the reason for maximum pollution. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब की प्रॉब्लम है. अभी पीछे लास्ट वीक व्हेन दिल्ली के अंदर जो है स्कूल्स को क्लोज किया था, एट दैट टाइम many industries were shut. Why? Because एक तो कई इंडस्ट्रीज आपके केमिकल्स को यूज करती हैं. सेकेंडली, ऑल द इंडस्ट्रीज जिनके भी आपके मशीन है, मशीनों से शोर भी आता है. देन दे आर यूजिंग द डीजल,
जिसकी वजह से आपका स्मोक आता है, एयर पोल्यूट होता है. Then they also, some of the industries like IT industries are having the radioactive products. Then जब इंडस्ट्रीज प्लांट स्टील प्लांट वगैरह को साफ किया जाता है तो देन दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ थर्मल एंड वाटर पोल्यूशन. यानी कि इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री से देयर कैन बी नंबर ऑफ environmental problems, and with that there are so many illness. और इसीलिए the government is now trying to find solution कि ये इंडस्ट्रीज तो देखो बच्चा हम बंद नहीं कर सकते हैं, बट इनका जो पोल्यूशन लेवल है, इनसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब प्रॉब्लम करती है. देन स्मोक आपका एमिट होता है फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. देन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पर था भोपाल के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, किसी अभी, और विजाक में भी हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था विजाक में. द इंडस्ट्री के अंदर से जो केमिकल था वो लीक हो गया था. एंड भोपाल का तो इट वाज यू कैन से वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज. जैसे पैंडेमिक था ना वैसा था वो. आपको पता है भोपाल ट्रेजेडी के बाद 10 साल बाद भी जो बच्चे पैदा हुए थे ना, उनमें कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम थी. इतना पोल्यूशन हुआ था बिकॉज वो जो मतलब कि मेजर इंडस्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, उनके उसमें लीक हो गया था और आसपास पूरा एरिया खराब हो गया था. अभी रिसेंटली विजाक में हुआ था, किसी प्लांट के अंदर से लीक हो गया था. सो दैट कैन बी देयर. देन एयर पोल्यूशन होगा अगर डीजल यूज करते हैं, जनरेटर, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं दे यूज द जनरेटर आल्सो, so that also causes air problems to everyone. Then many industries like food processing industries, then paper industry, paper pulp, chemicals, textile, जहां डाई होता है, पानी यूज होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टैनरी होता है आपका जो मतलब कि जो आपके एनिमल्स होते हैं उनसे जो लेदर वगैरह बनता है वो, ये सब वाटर को यूज करते हैं. कानपुर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बिकॉज वहां पर आपके टैनिंग इंडस्ट्री बहुत सारे हैं. प्लस यू ऑल्सो हैव द जो आपके अरहर की दाल होती है, दैट पिजन मतलब कि हम लोग बोलते हैं पिजन आई पल्स, वो भी वहां पर है. तो वो पॉलिशिंग वगैरह के लिए पानी यूज करते हैं. एंड वो जो बेल्ट है गंगा का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है. देन sometimes they even throw their waste into the water. कि मेरे सामने 7 years back हुआ था. It was January 3rd, because my daughter was having a pre-board and we were going to drop her. तो बीच में हिंडन नदी में ना एकदम फोम बना हुआ था. अभी छठ पूजा में भी ऐसा ही हुआ था. एंड मेनी पीपल वर टेकिंग सेल्फी ये सोचकर कि शायद सर्दी का मौसम था तो शायद स्नोफॉल हुआ है. देन द पुलिस टोल्ड, वहां पर गोपाल जी इंडस्ट्री है, उन्होंने अपना जो है गर्म पानी का वो डाला था, मतलब कॉस्टिक सोडा से साफ किया था तो वो झाग बन गया था. तो मेनी टाइम्स द इंडस्ट्रीज आल्सो पोल्यूट द वाटर, जो मेरे थर्मल पोल्यूशन. एंड इसकी वजह से पानी तो खराब होता है, उनमें जो जीव जंतु होते हैं वो भी बेचारे. देन मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज आल्सो प्रोड्यूस radioactive, like आपके nuclear, which is very 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 dangerous to the humans as well as to others. When the industries are using the बड़े बड़े machines use करते हैं तो they also produce noise. Even though noise जो है उसके लिए the government has given them strict, लेकिन still the मतलब कि वहां पर चलता है. जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स चलते हैं
जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है, वहां पे अंदर काम करने वालों को कई लोग जो है दे बिकम डेफ, हाइपरटेंशन, देन अदर डिजीजेस हो जाते हैं. तो व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? आपका जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग बाय इंडस्ट्री, ये जो क्वेश्चन है दिस केम फॉर द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज मतलब कि हाउ डू द industries pollute the environment and what are the ways to minimize the degradation. तो आपको जो है थोड़े थोड़े पॉइंट्स में सारे पोल्यूशन को लिखना है एंड प्रिवेंटिंग वेज जो है वो इनमें से आपको लिखना है. एंड दिस इज वन ऑफ द यू कैन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हम लोग जो है रिसेंटली जस्ट अभी एक दो दिन पहले ही मोदी जी गए थे, तो दिस वाज अभी. और एक और मतलब कि मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव सेड दैट कंट्रीज लाइक इंडिया आर द वन जो ग्लोबल पोल्यूशन में सबसे ज्यादा वो दे रहे हैं. तो अभी जो समिट हुआ है जिसमें मोदी जी गए हैं, he has also taken this कि इंडस्ट्रीज जो हैं मतलब कि we should minimize environmental degradation. तो ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत होते हैं. फर्स्ट इज, हम लोग जब इंडस्ट्रीज होती हैं तो वी हैव 3 स्टेप्स ऑफ ट्रीटिंग द वेस्ट. तो पहला हम जो है मैकेनिकल यूजिंग द मशीन हम जो है सारे ट्रीट करके निकाल सकते हैं. सेकेंड इज जो बायोलॉजिकल वेस्ट मतलब प्रोसेस होता है उसके थ्रू. एंड देन केमिकल, इसको यूज करके हम पानी को रिसाइकल कर सकते हैं. एंड दैट रिसाइकल्ड वाटर कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस लाइक क्लीनिंग, then watering the plants, not for drinking purpose, but it can be used. And many of the large projects today और बहुत सारे कंपनीज में भी ऐसा किया जा रहा है और इस पानी को रिसाइकल करके they are using it for different purposes. There are many projects जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं यहाँ पर भी है, because I have gone there downstairs में जाकर देखकर आई थी. They treat all the मतलब waste और उसके बाद वो रिसाइकलिंग वाला आता है एंड देन ऑल द वाटर इज यूज फॉर द प्लांट्स जो साइड में लगे उनके लिए यूज होता है. सो वी कैन डू इट. ये तो है हाउ द इंडस्ट्रीज पानी को बाहर डालने से पहले कर सकते हैं. बट और पोल्यूशन जैसे एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, उनको कैसे हम करेंगे? पहले वाटर को तो वो रिसाइकल करें. रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ the river waters, underground waters. Hot water and effluent should be treated before releasing in rivers and ponds. मतलब उनको साफ करके आप डालो. Overdrawing of groundwater should be avoided. Then जो आपके मतलब की इंडस्ट्रीज हैं जिनसे आपके धुआं निकलता है, वहां पर यू हैव द स्मोक स्टैक्स. अगर आप लोगों के घर में चिमनीज है, किचन के अंदर होता है चिमनी लगा होता है, तो वो चिमनी से क्या होता है अगर आप देखोगे जब मम्मी खाना बना रही है तो ईदर यू आर यूजिंग द एग्जॉस्ट फैन और द स्मोक स्टैक्स लगे होते हैं उसके अंदर, वो आपका जो स्मोक है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है. तो ऐसे स्मोक स्टैक्स कैन बी फिट इन द मशीन्स जिससे मतलब कि जिससे कि इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन को ना फैलाए. देन इन द नॉइस पोल्यूशन के लिए जनरेटर्स के अंदर आपके साइलेंसर्स को लगाया जा सकता है. लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज है तो जो वर्कर्स हैं उनको ईयर प्लग्स या ईयरफोन दे सकते हैं जिससे उनके कान ना फट जाए. So these are some of the ways through which we can minimize the use of we can environmental degradation को minimize कर सकते हैं. और एक ऐसा एग्जाम्पल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी. एनटीपीसी जो है इट इज द वन विच इज यूजिंग द कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर बड़े सारे थर्मल वो लगाए थे कि वेयर आर द थर्मल, नरोरा लगाया था हमने, असम में लगाया था हमने, रामागुंडम में लगाया था. तो दे आर ऑल यूजिंग द कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी.
तो व्हेन दे आर यूजिंग कोल, तो कोल आपका सबसे ज्यादा, जो कोयला होता है ना, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन देता है। आपको पता है, in the older times many of the women were suffering from tuberculosis, और वो इसीलिए क्योंकि वो कोयला यूज करते थे अंगीठी के अंदर, एंड जो कोयला होता है बिकॉज इट्स कार्बन, तो व्हेन इट इज उसको बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। एंड देयर हैव बीन नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि उन दिनों में तो ये हीटर वगैरह नहीं होते थे, तो कोयला होता था, अंगीठी होती थी, अंगीठी एक बाल्टी के जैसा होता था, उसमें नीचे कोयला डालते थे, तो जब वो कोयला बंद हो जाता था तो रात को घर के अंदर रख देते जिससे कि एनवायरमेंट गर्म हो जाए। बट मेनी ऑफ दिस पीपल विल गेट ट्यूबरकुलोसिस, और इवन वो सफोकेट हो जाते थे टू डेथ। तो कोल आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर स्प्रेडिंग पोल्यूशन। लेकिन एनटीपीसी जो कि कोल को ही यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा मेजर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनटीपीसी से ही आता है, उसके बावजूद दे आर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट। हाउ? दिस इज बिकॉज उन लोगों ने क्या कर रखा बच्चा, अगर आप लोगों ने आप लोग में से कोई बच्चा यहाँ पर आईटीओ जाता है, दैट इज टुवर्ड्स आईटीओ, आपका ब्रिज उतरते ही लक्ष्मी नगर फिर आईटीओ, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो एनटीपीसी का बहुत बड़ा, मतलब कि द स्टेशन इज देयर, बहुत बड़ा है, और वहां छोटे छोटे जो आपकी वो गुड्स वाली ट्रेन होती है ना, वो कोयला लेकर जा रही होती है, कभी देखना, अगर नहीं देखा तो देखना। तो ये जो कोयला होता है ना, दिस इज दे यूज इट, बट वो लोग फिर क्या करते हैं, उनके जो मशीन्स हैं दैट इज लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड। दूसरा, अपने चारों तरफ दे आर बिल्ड द ग्रीन बेल्ट इनसाइड एनटीपीसी के अंदर। दूसरा आपका फरीदाबाद के पास है, फरीदाबाद के पास इनसाइड अपने, मतलब कि उस एरिया के अंदर दे यूज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तीसरा, उन लोगों ने क्या कर रखा, जो कोल होता है वो जल जाता है, तो जलने के बाद वो क्या बनेगा, राख, ऐश। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं, और ऐश पॉन्ड है जिसके अंदर उसको दबा दिया जाता है। दे आर हैविंग द ऑनलाइन डेटाबेस फॉर ऑल द पावर स्टेशन टू मॉनिटर द इकोलॉजी, एंड इन दिस मैनर, ये हमने एनटीपीसी के बारे में यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं बच्चा, दिस इज बिकॉज एनटीपीसी इज द, मतलब कि वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्मल इज यूजिंग कोल, और कोल इज द लार्जेस्ट मतलब कि एक्सप्लॉइटर फॉर द एनवायरमेंट। उसके बावजूद एनटीपीसी हैज गिवन अ न्यू वे टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट। ये इसीलिए यहाँ पर दिया है क्योंकि दे वांट टू टेल दैट अगर एनटीपीसी कैन डू, देन ऑल द इंडस्ट्रीज which are using one or the other as raw materials can also use such techniques जिससे कि हम पोल्यूशन को कम करें। क्योंकि बच्चा देखो, अब हम ये तो बोल नहीं सकते हैं कि भाई आप पोल्यूशन को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, होता भी है, होता भी है। whenever there is more pollution, I remember 2019 was the worst because सबसे पहले दिल्ली के अंदर आया स्मॉग, बच्चों की छुट्टियां हो गई, स्मॉग हुआ तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है उनमें से कई इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। जो इंडस्ट्रीज आपके जनरेटर यूज कर रही थी उनको बंद कर दिया, बाकी इंडस्ट्रीज को बोला गया आप सिर्फ 3-3 घंटे मतलब की चलाओगे। उसके बाद दिल्ली के अंदर आया रायट, उसके बाद वो सीए का चला, उसके बाद कुछ और रायट आया, उसके बाद हमारे भाई साहब कोरोना आए थे। तो ऐसा कई बार आता है, मतलब मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट द इंडस्ट्रीज जो है दे आर शट डाउन, बट शटिंग डाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। Industries are the barometers of economy. More industries, more employment, more products. जहां हम लोग मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, तो जब मेक इन इंडिया होगा तो मैक्सिमम हमारे पास वी नीड मोर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो इंडस्ट्रीज होंगी तो दे विल ऑल्सो कॉज व्हाट वी कॉल एज पोल्यूशन। So we need to minimize the pollution by using the alternatives.
हमें जो है ऑल्टरनेटिव्स यूज करने हैं, मिनिमाइज करना है, और इस तरीके से वी कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। दस इफ ये सब कुछ हम करेंगे तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज विल बी हेल्पफुल टू अस। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, इस क्वेश्चन से मैप भी आएगा। मैप आपका मिनरल मतलब जितने भी ज्योग्राफी के चैप्टर हैं सबसे आएंगे, दो इट विल बी ओनली 3, बट यू कैन एक्सपेक्ट मैप फ्रॉम एनी ऑफ द क्वेश्चन। इसमें से आईटी वाला जो है वो और ऑटोमोबाइल वाला जो है वो दे आर मतलब कि मोर व्हाट यू कॉल एज कॉमन। देन you also have the one mark और 2 mark के क्वेश्चंस कम आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। इंपॉर्टेंस आ जाता है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री आ जाता है, why sugar industry has been there has been a shift of sugar industries towards the south belt, that is especially in the western part, वो आपका आ जाता है। देन आपके इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री आपके आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, that is the environmental pollution as well as how to tackle the environmental pollution, ये आपके important questions हैं which you must learn, you must remember. So this is the entire chapter, that is classification of manufacturing industries.